हेलो फ्रेंड्स, मैं रचना अमरनाथ हैप्पी लिटरेचर चैनल में आपका स्वागत करती हूँ। सो फ्रेंड्स, इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू डिस्कस अ पोम रिटन बाय तोरू दत्त, सीता. And in this video, I have provided a reference for each stanza followed by its context and explanation. So if you want, you can use this as notes and also for your exam. So let's start this poem with an introduction. This poem is a poignant and evocative piece that captures the image of the mythological figure Sita. ओके, सीता इन एग्जाइल. तो ये पोम किसके बारे में है? सीता के बारे में है, उनके वनवास के बारे में है. एंड दिस पोम इज डीपली नॉस्टैल्जिक एंड एक्सप्लोर्स द थीम्स ऑफ लॉस, सॉरो एंड मेमोरी. तो ये नॉस्टैल्जिक है, मतलब कि ये पोम जो है एक बचपन की यादों जैसी है. जब हम अपने दादी नानी के साथ बैठकर कहानी सुनते हैं तो ये कुछ वैसा याद दिलाता है. नाउ लेट्स स्टार्ट विद द पोम. 3 happy children in a darkened room. What do they gaze on with wide open eyes? So the poem begins with an image of 3 children sitting together in a dimly lit room. 3 बच्चे एक साथ बैठे हैं एक डार्क रूम में, मतलब जहाँ पर लाइट बहुत ही डिम है. तो पोम में अगर ये सारी चीज़ें मेंशन होता है, जैसे कि डार्क रूम या फिर डेंस फॉरेस्ट, तो उसके पीछे कुछ ना कुछ मीनिंग होता है. मे बी दिस डार्केंड रूम सिंबलाइज द कॉन्ट्रास्ट बिटवीन इनोसेंस ऑफ these children and the somber story they going to hear. Somber means sad story which they going to hear. And wide open eyes, ये क्या सजेस्ट कर रहा है कि ये स्टोरी सुनने के लिए कितना ज़्यादा इंटरेस्टेड है, फैसिनेटेड है और इमोशनली इंगेज्ड है. सो दिस फ्रेज वाइड ओपन आइज सजेस्ट फैसिनेशन एंड डीप इमोशनल इंगेजमेंट. अ dense forest where no sunbeam pries, and in its center a clear spot there bloom gigantic flowers on creepers that embrace tall trees there in a quite lucid lake. Now these lines suggest that children's imagination is transported to magical and dense forest. अब बच्चे क्या सोचने लगे कि ये सीता है, एग्जाइल्ड है, मतलब कि वनवास में है, वन में है, तो वहाँ का बैकग्राउंड कैसा होगा, उसे इमेजिन करने लग गए. तो अब यहाँ पे डेंस ये जो वर्ड है 2 बार यूज़ हुआ है. तो इस क्या सिंबलाइज करता है, ये एम्फेसाइज करता है कि फॉरेस्ट इतना ज़्यादा डेंस है कि वहाँ पे सनलाइट भी नीचे नहीं पहुँच पा रहा है. सो इट एम्फेसाइजेज द इम्पेनिट्रेबल नेचर ऑफ द फॉरेस्ट. देन पोएट हैज़ ऑल्सो यूज्ड मैनी अदर सिम्बल्स टू सिग्निफाइज द फॉरेस्ट ब्यूटी, लाइक जाइगेनेटिक फ्लावर्स मीन्स big flower, extremely big flowers, tall trees, then clear lake. Lucid lake means clear lake, or you can say clean lake. And here the poet has mentioned quite lucid lake. So what does it mean? It adds the tranquility to the setting. Means it shows that the environment is very peaceful, very calm. The wild swans glide there, whirring from the brake. The peacock springs there, herds of wild deer race. Their patches gleam with yellow waving grain. There, blue smoke from strange altars rises light. So in this stanza, poet enriches the forest scene. Means poet here improves the forest scene. और अच्छा बता रहा है forest scene को with vibrant imagery. जहाँ पर swan है, मतलब white swan है, with graceful move across the lake. Then peacock suddenly take flights and wild deer run freely. So just imagine all this thing, you will feel so beautiful. So these images evoke the purity and beauty of the natural world. See here it is given yellow waving grain. It suggests human civilization nearby. Yellow waving grain क्या suggest कर रहा है कि सिर्फ forest नहीं है, जंगली पेड़ नहीं है, यहाँ पे cultivation भी है, खेती भी हो रही है, एक settlement है यहाँ पर. Then the blue smoke from strange altars implies that this is a place of spiritual activity, reinforcing the idea of a scheduled retreat where sages perform rituals. तो ये जो लाइन है ब्लू स्मोक फ्रॉम स्ट्रेंज ऑल्टर्स क्या सजेस्ट कर रहा है कि यहाँ पे स्पिरिचुअल एक्टिविटी भी होती है, यहाँ पे सेजेस है, मतलब साधु संत लोग भी हैं, वो अपना रिचुअल्स को परफॉर्म कर रहे हैं, यज्ञ कर रहे हैं, ये सारी एक्टिविटी का यहाँ पर फील आ रहा है. देयर ड्वेल्स इन पीस द पोएट एनक्राइट. तो एनक्राइट मतलब जो लोग अलग रहते हैं, सेपरेट रहते हैं रिलीजियस पर्पस के लिए, तो उनको एनक्राइट बोलते हैं. तो पोएट एनक्राइट यहाँ पे सजेस्ट कर रहा है कि फॉरेस्ट जो है एक सेक्रेट प्लेस है, एक प्योर प्लेस है, जहाँ पे सीता को रेफ्यूज मिला, मतलब रहने का जगह मिला है जब वो एग्जाइल्ड हुई.
लेकिन जो यहाँ पे वर्ड पीस है तो एक्चुअल में पीस नहीं है, वो शांत नहीं है, शांति नहीं है, बल्कि दुख है जो सीता अपने पास रखी है इस आइसोलेशन में। बट हु इज़ दिस फेयर लेडी नॉट इन वेन शी विप्स फॉर लो एट फॉर एवरी टीयर शी शेड्स टीयर्स फ्रॉम 3 pairs of young eyes fall amain and bowed in sorrow for the 3 young heads. Now here the focus shift from the picture square landscape to the tragic figure of Sita. मतलब जो अभी पोएट लैंडस्केप के बारे में बात कर रहा है, उसकी ब्यूटी को एक्सप्लेन कर रहा है, तो यहाँ पे अब फोकस वहाँ से हट कर सीता के प्रॉब्लम पर आ गया, सीता के दुख पर आ गया है। नाउ चिल्ड्रन सी हर इन देयर इमेजिनेशन, मतलब अपने सोच में, अपने इमेजिनेशन में बच्चे सीता को देख रहे हैं। मतलब इन बच्चों की मदर जो भी स्टोरी बता रही है, ये बच्चे उसको इमेजिन कर पा रहे हैं। सो व्हाट दे आर इमेजिनिंग, अ sorrowful weeping woman. Her grief is so powerful that it moves children to tears. This shows how deeply they can feel the suffering of Sita. स्टोरी को सुनकर बच्चे रोने लग गए हैं, वो लोग इतना दुखी हो रहे हैं कि वो रोने लग गए। Their bowed heads symbolize their shared sorrow, highlighting the emotional impact of the story on their innocent minds. मतलब ये तीनों बच्चे जो सर झुका के बैठे हैं, ये क्या कर रहे हैं, सीता का दुख बांट रहे हैं। सीता के साथ जो कुछ भी हुआ, जिस चीज़ के लिए वो दुखी है, तो यहाँ पे बच्चे भी उसे फील कर पा रहे हैं और ये भी दुखी हैं। तो स्टोरी जिस तरीके से उसकी मदर बता रही थी, इतना इम्पैक्टफुल था कि बच्चे उस दुख को फील कर पा रहे थे। इट इज़ एन ओल्ड स्टोरी एंड द ले विच हैज़ इवोक्ड सैड सीता फ्रॉम द पास्ट इज बाय अ मदर संग दिस मतलब इट इज hushed at last and melts the picture from their sight away. Poem now reveals that the entire scene, the forest, the hermitage and the sorrowful Sita was brought to life through the mother's storytelling. मतलब ये सारी चीज़ें इतना रियलिस्टिक इसलिए लगने लगा क्योंकि जो मदर का स्टोरी टेलिंग का जो स्किल था वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा था। द फ्रेज ओल्ड स्टोरी, सो वॉट दिस रिमाइंड अस, इट रिमाइंड अस अबाउट द टाइमलेस नेचर ऑफ सीता's टेल विच पास डाउन थ्रू द जनरेशन, है ना। मतलब ये स्टोरी इतनी पुरानी है कि हमारी मम्मी हमें सुनाई, फिर हम अपने बच्चों को सुनाएंगे, हमारे बच्चे भी आगे चल के सुनाएंगे, तो इतनी पुरानी स्टोरी है वो। देन मदर स्टॉप स्पीकिंग, द विविड इमेजेस इन द चिल्ड्रंस माइंड्स बिगिन टू फेड। तो क्योंकि बच्चे रोने लग गए, उदास हो गए, तो मदर ने वो स्टोरी सुनाना बंद कर दिया, उनको चुप करा रही है कि अब मत रो, और धीरे धीरे बच्चों के दिमाग में जो इमेज बन रहा था वो कम होना शुरू हो गया। Yet shall they dream of it until the day. So even though the story has ended, its impact was so powerful, the children will continue to dream about Sita and her problem, Sita and her sorrow. तो भले ही उनकी माँ ने स्टोरी सुनाना बंद कर दिया, लेकिन फिर भी वो लोग अपने सपने में, अपने ड्रीम में सीता को देखेंगे, उनके प्रॉब्लम्स को देखेंगे, क्योंकि बच्चों के दिमाग पर ये स्टोरी का बहुत ही डीप इम्प्रेशन पड़ा है। When shall those children by their mother's side gather, me, as erst at eventide? Now the final lines introduce a personal feeling of sadness. Now the poet is sad here. Poet is thinking of something. She expresses doubt or sorrow over whether these children will ever again gather around their mother, as they did on this evening. Now see the phrase, me. So what this convey? This convey a deep personal longing or grief, which is hinting at Toru Dutt's own childhood memories और sense of loss. तो यहाँ पे लास्ट लाइन में क्या है, पोएट बहुत दुखी है, वो सोच रहे कि फिर कभी ये बच्चे ऐसे अपने माँ के साथ बैठ के स्टोरी सुनेंगे। और इससे क्या सजेस्ट हो रहा है, लास्ट लाइन मी, इससे ये सजेस्ट हो रहा है कि वो खुद अपना जो चाइल्डहुड मेमोरी है उसे याद कर रही है। सो फ्रेंड्स, दैट्स ऑल फॉर दिस पोएम। आई होप यू अंडरस्टूड द पोएट्री। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ इसे लाइक कर दीजिए, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए। बाय।